Okay. Uh, Good morning, all of you students. In the previous lecture, we have discussed about the how to calculate or how to determine the design compressive stress of an axially loaded compression member. Okay. उसमें डिफरेंट बकलिंग क्लास ए बी सी हाउ टू डिसाइड पहले कैसे करते हैं टेबल नंबर 10 से, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर अपन ने सीन देखा कि भाई जो पर्टिकुलर एक्सियल लोडेड अगर कंप्रेशन मेंबर है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द एफसीडी बाय बोथ two methods. One method is the stress reduction method. Stress reduction method उसमें भी you can use the tabular form 8a to 8 D D तक जो 4 tables see in the IS code 800 2007, and you can directly find out the FCD from the table number 9A to 9D depending upon buckling class or yield stress or KL upon R, which is called slenderness ratio. Okay. From the today one of the famous day known as the World Environment Day, and in the 2021 the theme is ecosystem restoration. Have you seen this morning time or not? एनएसएस के काफी काफी स्टूडेंट्स ने आज मॉर्निंग में जो ये वेबिनार था पर्टिकुलर पर्यावरण के लिए दिवस के लिए वो भी अटेंड किया था. हैव एनी अटेंडेड और नॉट? जिसने अटेंड किया है या नहीं? नो सर. एनएसएस में कौन है? मी सर. धर्मेंद्र, अदिति एंड Satish. Satish, can you hear me? Okay, I think Satish had something network problems happening. Okay, today class it outlines about the angle strut. Strut is the compression member in a truss structure. Okay, ट्रस जो है उसके अंदर जो अगर कंप्रेशन मेंबर है उसको स्ट्रट बोलते हैं, और इफ द टेंशन है तो उसको टाइम मेंबर बोलते हैं. तो इसमें पर्टिकुलर अपन को डिजाइन स्ट्रेस निकालनी है एफसीडी, हाउ टू कैलकुलेट और क्या क्या लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ इट आइदर मे बी it may be centric loading or it may be eccentric loading depending upon the connections and corresponding the end restraint, how to calculate the design compressive strength FCD. Then third, second is the main point is about the laced column, lacing column and lateral system. We call the lateral system. Dharmendra, if you have any problem, you can ask me and mute your mic. Okay. From the Satish side, I think the network problem in continuous message to me. सर इसका मतलब शेयर कैसे कर सकते हैं? इसका लिंक शेयर करना है मुझे सतीश को. Directly go to settings and उसमें नॉन इसकी डिटेल जो है शेयर करते आपको आ जाएगी उसमें. I already shared the link in the group. Yes, sir. I shared the link to Satish. Okay, thank you. Okay, I'm now starting the angle strut. Okay, अब बेसिकली क्या है एंगल स्ट्रट क्या है? नॉर्मली ध्यान से देखना कि पर्टिकुलर एंगल जो रोल्ड जो सेक्शन है इसमें एक तो फर्स्ट की इसका जो सीजी है वो आउटसाइड द मटेरियल, मींस उसके जो शेप है उसके आउटसाइड होता है इसका सेंटर. यस और नो? देन आफ्टर सीजी और सेंट्रोइड,
Now coming to the, we are interested in the centroid point, and axis is about this one, y axis, sorry, it may be zz, it's something zz for external, and this one axis is yy, and this two perpendicular axis is a u or vv. ओके, तो अब पर्टिकुलर अगर फर्स्ट आपका सिंगल एंगल स्ट्रट है, single angle strut means it directly connected to gusset plate, it directly connected to slab base, something like. तो उस केस में for the calculating the, अगर सिंगल एंगल स्ट्रट है और कैलकुलेटिंग दी means directly calculating the FCD is depending on the loading, was concentric loading or eccentric loading. Okay, go to the directly open the IS code 800/2007 and clause number 7.5, page number 47. Once you open, then you can reply me. Done, sir. Okay, तो वहां पे पर्टिकुलर देखना कि इफ द सिंगल एंगल स्ट्रट जो है वो कैन बी लोड ट्रांसफर आइदर दी कंसेंट्रिकली, मींस सेंट्रिक लोडिंग होगा, मींस इसके सेंटर पे अगर आप लोड एक्सर्ट करोगे तो इट डायरेक्टली इन दी पोजीशन इज सेंट्रिक लोडिंग, और अगर आपने लोड तो जो ट्रांसफर किया वो यहाँ पे समथिंग लाइक एसेंट्रिसिटी अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो जो कैटेगरी होगी वो एसेंट्रिकली लोड ट्रांसफर करेगा. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन दी लोडिंग कनेक्शन और ट्रांसफर जो मैकेनिज्म है, ट्रांसफर जो कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग जो एफसीडी की वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करनी होती है. इसके लिए कैसे स्टेप्स होंगे, इसके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, एसेंट्रिक के लिए एफसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अपना मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके, नाउ कमिंग टू दी फर्स्ट केस आई एम कंसीडर एज concentric loading. Okay, clause number 7.5 1.1. ओके, तो इसमें पर्टिकुलर क्या है कि अगर सिंगल एंगल जो है वो आपका पर्टिकुलर सेंट्रिक लोडिंग है, मींस आपने क्या किया, कुछ अरेंजमेंट इस टाइप से किया कि ये जो एंगल सेक्शन है उसका ये जो सेंट्रॉइड है यहाँ पे आपने लोडिंग पी जो लोड है वो यहाँ पे एक्सर्ट किया आपने, तो इस केस में ये नोन होगा ये एक्सियली कॉलम या एक्सियली कंप्रेशन मेंबर. और एक्सियली कंप्रेशन मेंबर के लिए अपने प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था, क्लास थी, उसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी एफसीडी डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस ये ऑलरेडी अपन ने जो लास्ट क्लास है, जो क्लास में नहीं आया तो वो यू कैन रेफर डायरेक्टली यूट्यूब क्लास, आई अपलोड ऑन द यूट्यूब सेम लेक्चर. ओके, तो उसमें पर्टिकुलर तो यू कैन आल्सो यूज द मेथड 1 और मेथड 2 depending on the x factor, means stress reduction factor. You can also calculate the FCD from the table number 9A to 9D, sorry, 9D, depending on the A, B, C, D buckling class of the cross section. Okay, तो ये तो आपका पूरा जो कंसीडर जो अपन ने किया वो कैलकुलेट कर. नाउ कमिंग टू न्यू थिंग्स, क्या है वो है न्यू थिंग्स कि अगर आपका लोडेड थ्रू वन लेग और एसेंट्रिक लोडिंग, मींस आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर एंगल सेक्शन को सिर्फ उसका एक एज ही आपने क्या किया, कनेक्टेड कर दी. ओके,
तो ये जो आउटस्टैंडिंग जो लेग है और इसको कनेक्टेड लेग बोलते हैं, तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपका वन लेग है तो ये एसेंट्रिक लोडिंग होगी इसके अंदर। ओके, अब इसके केस में एसेंट्रिक लोडिंग में अपने को क्या कंसीडर करना होता है कि एक इसके इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो निकालना होता है। और ये इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर एंगल सेक्शन का ये जो लेग है, वन लेग अगर आपने कनेक्ट किया है, अदर लेग कनेक्ट नहीं किया, तो ड्यू टू दिस एसेंट्रिक लोडिंग फ्लेक्सुरल टॉर्जन बकलिंग, ये फ्लेक्सुरल फिर उसके बाद टॉर्जनल और बकलिंग, स्ट्रेंथ ऑफ angle loaded in compression through one of its legs। ओके, तो इसके केस में ये जो फ्लेक्सुरल टॉर्जनल बकलिंग स्ट्रेंथ जो है, ये क्या है पर्टिकुलर, एक तो एसेंट्रिक लोडिंग की वजह से हो रहा है, वन एज ही कनेक्ट है। तो वन एज कनेक्ट होने की वजह से ध्यान से देखना, अगर मैं इसका वन एज कनेक्ट करूं, ये अभी एलिवेशन मान लो, और इस पे जो लोड जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ड्यू टू दिस इसका क्या होगा, इन प्लेन बकलिंग होगा। और ये इन प्लेन जो बकलिंग है इसके वजह से ये ट्विस्ट भी करेगा। ओके, अगर मैं ट्विस्ट की बात करूं तो इस टाइप से ये जो एंगल सेक्शन है ट्विस्टिंग भी करेगा, मींस इसका ड्यू टू दिस फ्लेक्सर और बकलिंग मींस ये इनस्टेबिलिटी, बकलिंग का मींस इनस्टेबिलिटी, लेटरल डिफ्लेक्शन प्रायर टू अटेनिंग द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको बकलिंग बोलते हैं। रेफर टू द फर्स्ट क्लास ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, लेक्चर नंबर आई थिंक 16। तो ड्यू टू दिस टॉर्जनल, अब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगी। मींस अगर आपका सेंट्रली लोडेड है, मींस कॉलम अगर सेंट्रली एक्चुअली कंप्रेशन मेंबर है, तो एफसीडी यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट, बट in particular this situation we have find out by the help of equivalent slenderness ratio lambda e, refer to clause number 7.5 1.2। ओके, क्या है इसका एक्सप्रेशन देखो ध्यान से। स्क्वायर रूट में फर्स्ट इज फैक्टर इज k1, सेकंड फैक्टर इज k2 and lambda vv square and uv square is the particular, एक और फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा, then multiply by k3 and lambda phi square। ओके, तो ये जो बहुत सारे जो फैक्टर है, इसी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपन इसकी जो लेटर टॉर्जनल जो बकलिंग है, ये स्ट्रेंथ जो है ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू दी k1 k2 k3, ये पूरा डिपेंड करता है किस पे, एंड कंडीशन या एंड रेस्ट्रेंट पे। k1 k2 k3 जो कांस्टेंट है, these are constant and depending upon the end condition, support और रेस्ट्रेंट। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए एज पर आईएस कोड यू हैव टेबल नंबर 12। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू दी जो टेबल जो 12 है उसके अंदर देखो, इसको टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बोल्ट्स सबसे पहले, देन
इसका जो कनेक्शंस है गजेट प्लेट से या किसी दूसरे कनेक्टिंग मेंबर से, ओके। और आपको K1 और K2 और K3 यू कैन इजिली सीन इन दी IS कोड आल्सो, बट जो टेबल है उसको कैसे रीड आउट करना है और किस केस में कंसीडर करना है। सबसे पहला, अगर नंबर ऑफ बोल्ट्स आप प्रोवाइड करते हो इस टाइप के मेंबर के लिए, तो वो ग्रेटर देन 2 और इक्वलेंट टू अगर है केस में, तो उसका केस नंबर 1 बनेगा। देन सेकंड इज 1 bolt. 1 बोल्ट ओनली फॉर सिंगल। ये मोस्टली यूज होता है लेसिंग पैटर्न्स और बहुत सारे इसमें ट्रस्ट मेंबर में, तो उसमें वहां पे सिंगल बोल्ट से प्रोवाइड करते हैं। अब इनका जो एंड कंडीशन है वो ट्रीट क्या करेंगे, आइदर द फिक्स्ड और आइदर द हिंज। फिक्स्ड का मतलब आपने इस तरह उसको नॉर्मली एंड रेस्टेंट दिया है कि वो मोमेंट या फिर पर्टिकुलर मतलब जो लोड है वो ट्रांसफर करेगा ही करेगा। और हिंज का केस में मतलब अगर आपका ट्रस्ट मेंबर है तो डायरेक्टली जो मेंबर में ये कनेक्शन जो होगा वो हिंज होगा, ओके। तो इसके केस में भी 1 बोल्ट से भी फिक्स कर सकते हैं। यू कैन यूजिंग फ्रिक्शन, हाई फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, और इस टाइप से अगर आप यूज करोगे तो ये फिक्स भी हो सकता है, ओके। नाउ कमिंग टू दी वैल्यू। वैल्यू जो है वो डिपेंडिंग, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने प्रोवाइड कर रहे हो, फिर उसकी एंड कंडीशन आपने कितनी रखी है, आइदर दी फिक्स रखा है या हिंज रखा है। डिपेंडिंग ऑन दी दिस वैल्यू K1 K2 आर डिफरेंट वैल्यू अटेनिंग फ्रॉम, मैं जस्ट नोट डाउन कर रहा हूं, यू कैन डायरेक्टली रेफर टू दी टेबल नंबर 12, 0.7, 0.60 और 5. Then directly go to the fix for the single bolt, 0.75, 0.35 or 20 or 1.25, 0.50 or 60. ओके। अगर आपको एक और क्वेश्चन में नीचे कुछ लिखा होगा, देखो मार्क लिखा हुआ है, अगर इन दोनों कंडीशन में अगर एंड रेस्टेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, मींस अगर पार्शियली रेस्टेंट आपने प्रोवाइड किया है, तो लैम्डा जो इक्विवेलेंट जो है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा फिक्स्ड एंड का और लैम्डा निकालना पड़ेगा हिंज का, और उसके बिटवीन इन बिटवीन आपको कंसीडर करना पड़ेगा किसके लिए, पार्शियल रेस्टेंट के लिए। क्लियर है ना कि भाई सबसे लूज कंडीशन मींस सबसे है हिंज कंडीशन आइडियल कंडीशन, सबसे फिक्स कंडीशन है वो भी आइडियल कंडीशन, इन बिटवीन अगर पार्शियल आता है तो लैम्डा इसके लिए निकालना है, फिर लैम्डा इसके लिए ना, और ये जो लैम्डा होगा इन बिटवीन 2 वैल्यूज, ओके। क्लियर सर फिक्स्ड का सर गजेट प्लेट का डायग्राम बना के दिखाओ ना एक में। कि नॉर्मली जो गजेट प्लेट है और कनेक्टिंग जो मेंबर है, अगर आपका पर्टिकुलर 2 मेंबर 2 बोल्ट्स का बता रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर आपकी गजेट प्लेट और ये एंगल सेक्शन। अब इस पर्टिकुलर एंगल सेक्शन में अगर मिनिमम 2 बोल्ट्स हैं और इसमें किसी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही, मींस फिक्स का मतलब ये मूवमेंट नहीं एग्जिट कर रहा, और इसका जो आप वो एलई जो फाइंड आउट करोगे इसको ट्रीट क्या करोगे, फिक्स्ड एंड की तरह। इसका एलई कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था ना, एंड रेस्टेंट अगर फिक्स की तरह बताओगे तो ये पोर्शन ये डिपेंडिंग ऑन दी वोल्ट्स पे डिपेंड करेगा कि भाई ये मूवमेंट नहीं करने दे, और पर्टिकुलर इसकी जो लेंथ है फिक्स सपोर्ट, ये नॉर्मली क्या कहते हैं इसको, इफेक्टिव लेंथ एलई के मल्टीप्लाई बाई एल, और एल निकालने के लिए मैंने बताया था एंड टू एंड सपोर्ट आपको उसकी सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन और सामने की सेंटर लाइन से मिला के वो होगी उसकी एक्चुअल लेंथ। तो के जो फैक्टर होगा अगर बोथ एंड फिक्स्ड है तो कितना लेते हैं आई स्कोर के अंदर, 0.65, 0.65 और नॉट। Yes, sir. क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay. Now coming to the
जो ये पूरा जो फॉर्मूला उसको मैं वापस रीड आउट कर देता हूँ यहाँ पे कि एलई इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस फैक्टर इक्वल टू K1 प्लस K2। इसको फॉर्मूले को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली इन अवेलेबल इन IS कोड। तो IS कोड जाके खोलना, ओपन करना एग्जाम के टाइम, और उसको बस एक बार वंस यू गो थ्रू अगर हो जाओगे तो इसमें परेशानी नहीं आएगी कि कोई भी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। L डिवाइडेड बाई RVV, एंगल के लिए सबसे मिनिमम जो रेडियस ऑफ जायरेशन होती है यही होती है, आई थिंक डिवाइडेड बाई, हाँ ओके, एप्सिलॉन स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर कैपिटल E 250। ये ध्यान रखना, ये कैपिटल E है, उसमें शायद तक कोड में एप्सिलॉन नजर आ रहा होगा। एक मिनट, अगर 250 है और एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन मींस 250 डिवाइडेड बाय F1। ओके, आई थिंक एप्सिलॉन है ना ये, Yes, कैपिटल sir. E छोड़ी Yield stress ratio. यील्ड स्ट्रेस। ओके ओके, तो पाई स्क्वायर एप्सिलॉन E डिवाइडेड बाय 250 250. and lambda phi equal to B1 plus B2 divided by 2t divided by epsilon factor pi square epsilon 250, और epsilon equal to square root 250 divided by FY. Fy। एक पहला फैक्टर तो ये, फिर L जो है वो एक्चुअल लेंथ है, और एक्चुअल लेंथ क्या लिखा हुआ है, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग मेंबर की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है स्मॉल एल की वैल्यू, और आरवीवी जो है वो माइनर एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ gyration। ओके, देन T is the thickness of leg या angle, and B1 and B2 are width of angle section। अनइक्वल के लिए आपको B1 और B2 रिफर करना है, और इक्वल के लिए B, मींस उसके केस में B1 और B2 हो जाएगा फॉर द इक्वल एंगल केस। ओके, तो ऐसी कोई टर्म्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। Sir, RVV explain कर दो. आरवीवी मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल हैंडबुक जो है उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि एंगल सेक्शन के लिए मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था आपको, Yes, sir. और वो असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं कराया था, क्लास के अंदर मैंने कराया था, ऑफलाइन जब थे आप, तो आई थिंक आपने उस चीज को उस टाइम तो नहीं देखा होगा। ये एंगल सेक्शन क्या है, अनसिमेट्रिकल सेक्शन है, किसी एक्सिस के अबाउट इसकी सिमेट्री हो सकती है, तो वो एक ये वाली एक्सिस है, एक तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे वापस इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, एक इसके परपेंडिकुलर और एक्सिस है, तो जितना मास जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सिस से आगे की तरफ होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा आई, और इस पर्टिकुलर अब एरिया क्या है, इक्विवेलेंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट Z, अगर Z की बात करूं तो I जो है, I जो है वो पर्टिकुलर क्या है, इस वाले एरिया का ज्यादा, इस वाले का कम, तो IZZ फाइंड आउट करो, IYY फाइंड करो, फिर उसके बाद में RUU और RVV। तो वो एक्सिस जिसमें मोस्टली सारा जो मास है वो नियरेस्ट होगा, उसके अबाउट आई जो है मिनिमम होगा। अगर आई मिनिमम होगा दैट मींस आर भी मिनिमम होगा, यस और नो।
Am I right or not? तो ये जो दो एक्सिस है ना, यू और वीवी एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. रेफर टू सोम क्लास 4 SEM civil. If you have book, BC Punamya, RC Hibler, Gare and Timosenko, you can refer any book. Or if you have want to interest in the particular subject SOM or in the foundation of civil engineering, foundation means SOM अगर आपको पढ़ना चाहते हो और in the थ्री डायमेंशनल में आपकी विजिबिलिटी मीन्स आपकी जो थिंकिंग पावर हो इंक्रीज हो, यू कैन परचेज बुक RC Hibler मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, और एक गैरे और टिमोसेंको भी है, यू कैन आल्सो रेफर. इस बुक में अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो लेना, बाकी फॉर रिसर्च पर्पस और फॉर इन डेप्थ पर्पस के लिए लेना. बाकी अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप वैसे भी फाइनल ईयर में आ गए हो, तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको पर्टिकुलर सोम पढ़ना है, और सोम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो डिजाइनिंग सब्जेक्ट है, एनालिसिस सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइनिंग, स्टील, कंक्रीट, प्री स्ट्रेस, सब कुछ डिपेंड करता है सोम पे. ओके, तो ये आर जो है वो मिनिमम माइनर, मतलब अनसिमेट्रिकल जो सेक्शंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल सेक्शन, द माइनर एक्सिस आर नॉट ZZ और YY. इसका कहने का मतलब ये है, फॉर इफ आई कंसीडर फॉर रेक्टेंगुलर, अगर ये वाली एक्सिस जो है ZZ है और ये वाली एक्सिस YY है और इसकी थिकनेस B और इसकी जो डायमेंशन है वो H, तो ZZ और YY में कौन सी माइनर एक्सिस होगी? माइनर एक्सिस मींस, हिंट दे देता हूं, माइनर एक्सिस मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम. कौन सी होगी भाई, कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसका, कौन सी एक्सिस माइनर होगी? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा. ZZ मैक्सिमम है, ये YY मैक्सिमम है. वाई वाई YY मैक्सिमम है. बी वेरी एच क्यूब नाइस. बाई है BH क्यूब बाई 12 होगा. BH क्यूब बाई 12 जो होगी, तो एक्सिस कौन सी माइनर है? मैं तो आई एम आस्किंग, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली इन द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस. और एक हिंट मैंने दे दिया कि जो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा वो दैट विल कॉल द माइनर एक्सिस. वाई वाई होगी. YY होगी. इसका होगा H B क्यूब बाई 12 और इसका होगा B H क्यूब बाई 12. बिकॉज ऑफ द H इज ग्रेटर देन B, दैट मींस हाइट या विड्थ इज ग्रेटर देन टू थिकनेस, या फिर पर्टिकुलर जो डायमेंशन है H वो इससे ज्यादा है, तो जिसका क्यूब होगा वो ज्यादा एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेन करेगा. तो H B क्यूब बाई 12 जो है वो माइनर एक्सिस में होगा, मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ड्यू टू फॉर this ZZ or YY axis, there is the another axis which can about from the जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मिनिमम होता है. वो एक्सिस जो है इसके केस में VV जो एक्सिस है इसलिए इसकी मिनिमम जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो कंसीडर किया. ओके, क्लियर? यस और नो? यस सर. नाउ कमिंग टू दी, ये हो गया आपका सिंगल एंगल स्ट्रट. नाउ कमिंग टू दी सेकंड इज डबल एंगल स्ट्रट्स. डबल एंगल स्ट्रट्स मींस, अब एंगल जो सेक्शन है इट कैन बी कनेक्टेड, फर्स्ट इज बैक टू बैक. ओके, back to back connected in opposite of the gusset plate, or it can be connected back to back but one side.
Okay, it can be connected back to back but opposite side of गजेट प्लेट. ये जो डायग्राम है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब तो स्टील इतनी फैमिलियर होनी चाहिए. Yes, sir. फर्स्ट फिगर किसके लिए है और सेकंड फिगर किसके लिए है वो ध्यान से देख लेना. ओके, अब देखो फर्स्ट फिगर है कि गजेट प्लेट के अपोजिट बैक टू बैक कनेक्शन है, मींस यहां से यहां कनेक्टेड है. और दूसरा गजेटेड प्लेट के ही बैक टू बैक कनेक्टेड है बट सेम साइड है. ओके, नाउ कमिंग टू दी, किसको क्या बोलते हैं वो लाइन देखो. इस जो साइंटिफिक लाइन है वो ये है आपका डबल एंगल, मींस दो एंगल. सबसे पहली लाइन डबल एंगल discontinuous strut connected on opposite side of गजेट प्लेट. इसने डिसकंटिन्यूस क्यों बोला है, कुछ वर्ड पता है? सर बीच में भी ये प्लेट आ गई है. बीच में इन दोनों के बीच में प्लेट आ गई. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड फिगर. सेकंड फिगर में भी देखो डबल एंगल discontinuous strut connected to one side of gazette. सर मे बी ये एंगल्स के फेसेस एक दूसरे के मे बी एंगल के फेसेस एक दूसरे से सर अपोजिट है ना सर. एक का यहाँ पे सर यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है ना सर. एक राइट साइड में एल है तो एक लेफ्ट साइड में एल है. दोनों सेम साइड सेम डायरेक्शन में नहीं है. ओके, think about this. I will ask in the Monday class. Okay. Yes, sir. Now coming to the कोड ओपन करो जिसमें क्लॉज नंबर 7.52 वो ओपन करना. उसमें लिखा होगा डबल एंगल स्ट्रट्स. तो इसको ध्यान से कौन पढ़ के बताएगा? यस अदिति. यस अदिति, इसको रीड आउट करो. For double angle discontinuous strut connected back to back on opposite I think it is audible to all of you. No, sir. discontinuous strut connected back to back. Sir audible है? Now, Yes, sir. now is audible. Connected back to back. Yes sir. On opposite side of gazette or a section. Okay. Next. By bolts or rivet angle at each end. Okay. Next. Or by the equivalent in welding, the load may be regarded as applied axially. Okay. तो मींस एक तो फर्स्ट है कि बोल्ट जो है वो नॉट लेस देन 2, मींस इनके कनेक्शन जब होते हैं बैक टू बैक जब होंगे तो इसमें बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन जो है वो इस तरह से होगा क्योंकि ये दोनों जो मेंबर है वो पर्टिकुलर एक सिंगल मेंबर से कनेक्टेड है. ये अपोजिट साइड में हो सकता है और ये पर्टिकुलर नॉर्मली किसके डायरेक्शन में सेम इन दी वन साइड, मींस गजेट प्लेट के इसके वन साइड में दोनों कनेक्ट हो गए
और इस गजेट प्लेट के दोनों अपोजिट एंड पे, दोनों अपोजिट साइड पे कनेक्टेड है। ओके, नाउ कमिंग टू दी, ये पॉइंट क्या है कि इसमें मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बस इतना है कि इसमें आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है ना, ये जो इफेक्टिव लेंथ है, अगर आपको इस टाइप की कनेक्शन हो गए और इफेक्टिव लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, तो इट कैन बी डायरेक्टली 0.7 टू दी 0.85 ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द रेस्ट्रेंट या सपोर्ट। ओके, और ये डिपेंड करेगा, जो मैं 0.7 की बात कर रहा हूँ, 0.85 की बात कर रहा हूँ, तो ये डिपेंड करेगा कि इसमें पर्टिकुलर आपका रेस्ट्रेंट लेवल कितना है या फिर उसका इंटेंसिटी कितनी है। जितना ज्यादा अगर आप रेस्ट्रेंट करोगे उतना फैक्टर कम लेना है, 0.7 लेना है ना। फिक्स सपोर्ट होगा तो उसमें कितना होगा, 0.65 लेते हैं। ऐसे नहीं, जितना रेस्ट्रेंट कम रखोगे तो 0.85 लेना, उल्टा लेना इसमें इफेक्टिव लेंथ। ओके, क्लियर? यस सर। नाउ कमिंग टू दी, अब ये तो हो गया, अब एक्चुअल में इसको जो ये पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट है, इसमें किस तरह इसको करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करने के लिए देखो, डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट कनेक्टेड बैक टू वन साइड ऑफ द गजेट और सेक्शन बाय वन or more bolts rivet in each angle or by equivalent welding shall be designed in the similar to the eccentric single angle connections। okay, अगर ये बैक टू बैक कनेक्शन होता है तो सिंगल एंगल जो एसेंट्रिक टाइप से जो आपने डिजाइन किया है उसकी तरह अपन को करना है। ओके, and double angle continuous struts such as those forming the flange ports or tie of strut or strut girders and legs of the tower shall be designed as axially loaded compression members and the effective length shall be taken as calculate the truss member discussed in the earlier। अब इसमें ध्यान से देखना, ये जो ये फाइंड आउट करना पहले डिसकंटिन्यूअस का मतलब। अब इसमें डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आपने सिर्फ दो एंगल लिया और एक कॉलम बना दिया, ओके, और ये जो सारे ट्रीटेड हैं ये एसेंट्रिक लोडिंग है इसके केस में। इस वाले केस में देखो, इसका सीजी यहाँ पे, इसका सीजी यहाँ पे, ओके, और लोड यहाँ पे लग रहा है। और इस केस में देखो, इसका सीजी यहाँ पे है, इसका सीजी यहाँ पे, और लोड यहाँ पे लग रहा है। क्लियर? अब इसमें देखो, इसमें एसेंट्रिक जो नॉर्मली जो सिंगल एंगल जो था उसमें एसेंट्रिक के लिए आपने मतलब वन एज वन लेग, इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि वन लेग है तो उसके केस में क्या करना है। ओके, अब इसमें एक केस जो है वो आपको सेंट्रिक कंसीडर करना है और एक केस एसेंट्रिक कंडीशन केस कंसीडर करना है। ये मैं जो क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा उस टाइम में बताऊंगा क्लियरली वहां पे कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे सेंट्रिक और एसेंट्रिक कंसीडर करना है। ओके, और डिसकंटिन्यूअस का मतलब ओनली फॉर आपको क्या करना है, एक सिंगल कॉलम बनाना है। मतलब ऐसे बनाया, दो एंगल लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ, और यहाँ पे बस आपने कनेक्टेड कर दिया गजेट प्लेट से या कॉलम बेस से और ऊपर डायरेक्टली लोड ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। और जो कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस अगर मेंबर है किसी के अंदर, और इसका एग्जांपल लिख लो साथ में, अगर ये कंटिन्यूअस मेंबर जो है कंप्रेशन मेंबर, वो कहां पे है कि भाई कहीं पे फ्लैंज मींस ये आई सेक्शन, और कहीं पे किसी पर्टिकुलर मेंबर का जो फ्लैंज बनाने के लिए आपको यूज करने हैं, कोर्स बनाने के लिए, मींस वो कंटिन्यूअस आगे किसी ना किसी पर्टिकुलर जॉइंट से कनेक्ट हो। ट्रस गर्डर ब्रिज में यूज होता है, और दी लेग्स ऑफ टावर। तो इस केस में कंटिन्यूअस मेंबर अगर इस केस में, तो ध्यान देना डबल एंगल जो स्ट्रट है, डबल एंगल स्ट्रट है, इसको डिजाइन करते हैं, डिजाइन फॉर एक्सियली
लोडेड कंप्रेशन मेंबर, जो कि प्रीवियस जो लेक्चर क्लास थी उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था। उसके केस में आपको एफसीडी फाइनली डायरेक्टली फाइंड आउट करना है टेबल से, वहां पे इक्विवेलेंट जो लैम्डा ई है ये चाहिए नहीं, ये सिर्फ एसएमटी के केस में चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर? ये वाला जो केस है डबल एंगल वाला स्टड, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्लियर होगा कि किस केस में आपको सेंट्रिक लेना है और किस केस में एसेंट्रिक लेना है। ओके, क्लियर? यस। नाउ कमिंग टू दी, अब आते हैं कॉलम का लेटरल सिस्टम। एक तो इसका असाइनमेंट होगा आपके लिए, लेटरल सिस्टम। अब एक्चुअल में क्या है कि देखो, फॉर दी हैवी कंप्रेशन लोड कि एक्चुअल में क्या होता है कि फॉर दी सबसे मैंने एक फिगर जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एंगल था, फिर चैनल सेक्शन था, आई सेक्शन था, फिर ट्यूब थे, फिर स्क्वायर सेक्शन टाइप के, फिर उसके बाद में दो एंगल सेक्शन को इस तरह लेटरल सिस्टम से ऐड किया था, फिर दो आई सेक्शन को इस टाइप से दोनों से ऐड किया, फिर पर्टिकुलर आई सेक्शन के ऊपर ही प्लेट लगा के किया। ये जो फिगर जो मैंने बताया था आपको, तो उसमें पर्टिकुलर आपने चीज नोटिस की होगी कि जैसे जैसे आपको अगर पर्टिकुलर लोड इंक्रीज करना है तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया वो इंक्रीज करना है। इस चीज को ध्यान से सुनना बहुत, एक मिनट वेट अ सेकेंड है ना, दिस वन कैन यू सी द फिगर? आई एम जस्ट डायरेक्टिंग टू गो टू द फिगर, ये जस्ट दिस वन। अब मेरे को एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उसका सोच के जवाब देना कि आपके पास एंगल सेक्शन, ये डबल साइडेड एंगल सेक्शन, फिर उसके बाद लेस टाइप का इस टाइप के अरेंजमेंट, फिर ये ट्यूब्स, तो अब आपके पास क्या पर्टिकुलर एरिया कांस्टेंट है? मींस अब आपको एंगल सेक्शन यूज, मतलब कंप्रेशन मेंबर के लिए शेप सेक्शन यूज करना है, बट उसका एरिया कांस्टेंट है। तो विच वन इज मोस्ट रेजिस्टेबल और मोस्ट पर्टिकुलर एफिशिएंट जो क्रॉस सेक्शन जो शेप होगा या क्रॉस सेक्शन जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा वो कौन सा होगा? अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका मतलब है मैंने आपको एक एंगल सेक्शन दे दिया, फिर एंगल सेक्शन भी है आपके पास, चैनल सेक्शन भी है, आई सेक्शन भी है, और अब आपको क्या करना है, एक मान लो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आपको इन तीनों में से चूज करना है, और तीनों में कुछ भी हो सकता है। इसको डबल एंगल बना सकते हो, कुछ को इस तरह बना सकते हो, एंड चैनल सेक्शन को इस तरह बना सकते हो। तो मोस्टली कौन सा फैक्टर जो है वो एफसीडी को इन्फ्लुएंस करेगा, मींस उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगा? ये मेरे को बताओ, मैं जस्ट एक हैंडलिंग ए कॉल, देन आप
ओके, कुछ पता चला? कौन रिडक्शन बताएगा आपको? हाँ बताओ। रिडक्शन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो रिडक्शन फैक्टर तो एक्स है ना, वो तो पर्टिकुलर एक्स एक्स और किस पे डिपेंड करेगा? एक्स मेरे को तो फाइनल स्लेंडरनेस है स्लेंडरनेस स्लेंडरनेस या केएल बाई आर। ज्यादा होगा तो एफसीडी ज्यादा होगी। के अगर ये केएल बाई आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो ना एफसीडी ज्यादा आता है। या कल 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 की क्लास में बताया था ना। हम्म, क्या? डिक्रीज होगा, ज्यादा होगा तो डिक्रीज होगा। हाँ, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो जिसका कम होगा उसकी एफसीडी ज्यादा होगी, वही सेक्शन चूज करेंगे। तो केएल बाई आर में कौन चीज फिक्स है? अगर कहीं पे आपको एंड रेस्टेंट जो है वो फिक्स्ड है, मींस अगर आपका हिंज है फिक्स्ड है, एंड कंडीशन जो भी है तो वो तो फिक्स हो गई। और लेंथ जो कॉलम की जो लेंथ है वो भी आपको फिक्स करनी है। अब एरिया फिक्स हो गया, मतलब आपको है ना जिस एरिया के लिए ना डिजाइन करना है वो एरिया फिक्स हो गया। अब आपको चूज करना है कि भाई पर्टिकुलर इस कंप्रेशन मेंबर के लिए आपको शेप या अरेंजमेंट ऑफ दी मेंबर्स क्या लेना है। वो डिपेंड करता है आर, रेडियस ऑफ जायरेशन। आर मिनिमम जितना लोगे वो क्या, केएल बाई आर क्या है? मैक्सिमम। भाई आर मिनिमम होगा यस तो सर। केएल बाई आर मैक्सिमम होगा। ओके। और आर अगर आपने पर्टिकुलर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस, ये वाई वाई, ये वाई वाई, अगर इन दोनों एक्सिस के अबाउट आपने आर को बराबर कर दिया, दैट मींस ये किसी भी एक्सिस में बकल होगा तो साइमल्टेनियसली होगा, ना कि अगर आपने जैसे आई सेक्शन ले लिया तो आई सेक्शन में ये है इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसकी माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले माइनर एक्सिस के अबाउट ये बैंड होगा क्योंकि वहां पे आर जो है वो मिनिमम है, और मिनिमम होगा तो केएल बाई आर की वैल्यू मैक्सिमम और एफसीडी की वैल्यू कम। दैट मींस ये कम लोड रेजिस्ट करेगा और यहाँ पे लोड आने के बाद में बकल हो जाएगा। दैट मींस आपका लेटरल सिस्टम या फिर पर्टिकुलर चूज ऑफ द कंप्रेशन मेंबर shape or arrangement are highly depending on the radius of gyration. Okay, now from my side is class over because I have received a call from the Gope sir. Today's schedule is changed. Just inform to your friends is 10:15 a.m. Just after 10 minutes you will join us. Okay. सर Yeah.